Hello, good morning, student. Today we are going to start our new point of this lesson, that is wind energy power station. Just actually, before it, we have learned about the different kind of the power station. In that power station, we have used their fuel. We have burns it and obtain the heat energy. And by using that heat energy, we have boil the water and convert the steam, and such a steam we have used for the rotating the turbines here, just like this. So these are one have a chemical change we have used there, and it is a cause of pollution. But today's energy generating plants we have learned here, yes, it is a totally friendly to ecosystem, yes, and conserving to the environments, to our life also, just like this. And it is a coming steps towards green energy. So here is the importance electric generating power station, that is a today's need, because now in those days we have get the energy crisis, and for solving that energy crisis, yes, it is one requirement. So it is one compulsory to you for our completing needs which are depending upon the electricity, and for its completions we have applied this kind of this energy power station, that is a wind energy power station. So let us start take their information about the wind power station. Here is one have a small difference, that is according to that natural resource of energy, that is a wind. Yes, wind is one kind of energy. The special designed turbines are used here. Actually these turbines, yes, it joins to the blades, and this is special constructed design turbines. Here we will learn and how they works, yes, their mechanism we have learned here. So let us start here. So come to our point, that is a wind energy or wind power station. First we are introducing the flow step diagrammatic representation. In that flow step diagrammatic representation, there is a wind required energy. Yes, that's wind have a flow. Wind have a flow. That's velocity. And such velocity, we will use it and we have converts into this kinetic energy. Yes, okay. And such a kinetic energy we have used to drive the turbines. And when the turbines goes to the drives, it connects to the generator. And generator, they reproduces the electric energy, that is the mechanical energy converted to electric energy. And such a flow charts is we have simplified it, yes, with showing the electricity generated by the wind energy. Actually we have tried to learn here one small animation effect here. Yes, in that animation effect, that is a power plant. Yes, it's a place where electrical power, yes, that is electricity generated here by using the wind, by using the wind, that is a wind power station. Actually what happens here is, in this power station we have used the generator, or also known as an alternator. And these generators we have, by using the mechanical power we have, yes, we have functionally it, we have driven it, and we have obtained the electrical power. Actually what happens here, so this is one have a just simple presentation I have to try, yes,
how simplify its. Yes, okay, this is my first attempt to try to explain to simplify its. That is a mechanical power. Mechanical power means what? That is a blades goes to the rotate through the wind. Means the wind have a kinetic energy, that is the wind have a flow, that is one velocity, and due to that velocity wind is tapped by that blade and blade goes to the rotate. Just okay. And these are connected to the generators, that is the alternator. Yes, and generators go to the, yes, it's a rotate, actually generator rotate. Why? Because the due to the rotations of the turbines. And when actually turbines goes to the rotate, that is a magnetic flux or the magnetic field goes to the changes. And when magnetic field goes to the changes around the coil, that time in the, yes, both end of the coil there is a potential difference, there is a, yes, creations of the or the formation of the potential difference. And due to that forming the potential difference, yes, electric current I is passed there. Potential difference is represented by V, that is a electric power we have get. Yes, yes, why? Because we have get it due to the forming potential difference. If the potential differences does not produce in to the both end of that coil, that time we can't pass the electric current there. Yes, we have learns actually in electricity chapter. So we have get the electric power here, that is a V into I. Yes, okay. So this is a electric current. This is a generating electric current here. Yes, through the obtain the generators. Yes, means the generator is going to have a device which convert the mechanical energy into electric energy. Mechanical energy देखिए, mechanical energy into electric energy. यस ओके, दैट इज अ मैकेनिक पावर इनटू इलेक्ट्रिक पावर. चलिए देखिए स्लाइड को थोड़ा सा देखिए, एनिमेशन जैसे घूम रहा है, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी. चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे यस घूमता है, दैट इज अ मैकेनिकल पावर. यस, अभी ये मैकेनिकल पावर, इस जनरेटर भी क्या होते हैं, रोटेट होंगे. तो देखिए बेटा, तो वी हैव गेट द विंड. अब ये विंड कैसी बनती है? यस, इट इज अ नेचर. देखिए सन, यस, ड्यू टू द, yes, radiations of the sun, solar radiations. Yes, solar radiation is directly, yes, approaches to the earth surface. And due to that what happened? Due to that earth surface goes to the become hot. And when it's hot, yes, it's a increase the temperature. Due to that increase in temperature, actually it become a hot. And the closer atmospheric region, yes, which is nearer to the Earth surface, yes, it's become also hot. And when it's become hot, that time they have a low density. And due to that becoming low density, yes, it goes to the upward. I have shown here the arrows. देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एरो बताया ना, तो एरो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं बेटा? जो गर्म, ये सूरज की जो किरणें होती है, ये किरणों के कारण यहाँ पूरी अपनी जो अर्थ है ना, मातृभूमि बोलते हैं हम इसको, ये पूरी क्या होगी यहाँ पे, गर्म होगी. और जैसे ही गर्म होगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो अर्थ के ऊपर यहाँ पे क्लाइमेट्स है ना, तो क्लाइमेट्स ये क्या करता है बेटा, नीचे वाली जो अर्थ सरफेस के लेवल की, अर्थ सरफेस की तरफ जो हवा होती है वो गर्म होगी. वो गर्म हवा क्या होगी, जैसे गर्म होगी तो उसका डेंसिटी घटेगी. जैसे डेंसिटी घटेगी तो कम डेंसिटी वाली हवा ऊपर चली जाएगी और ज़्यादा डेंसिटी वाली हवा नीचे आएगी. फिर बाद में वो गर्म होगी. एंड इट्स अ रेगुलर प्रोसेस एंड दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, दिस इज अ फिजिकल चेंज, दिस इज अ फिजिकल चेंज. जस्ट ओके. सो इट इज अ रिन्यूएबल वन. जस्ट एंड दैट्स व्हाई वी हो, यस, ऑप्टेन द विंड हियर. चलिए बेटा देखिए ये कंटिन्यू होता है ना, जैसे कि हाई डेंसिटी नीचे आएगी और लो डेंसिटी ऊपर जाएगी. जैसे कि हाई डेंसिटी नीचे आएगी, लो डेंसिटी हवा ऊपर जाएगी. इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, उनका बहाव बनेगा. यही इसी बहाव को लेकर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, विंड. देखिए विंड बन रहा है यहाँ पे. एक्चुअली वो, यस, that is a formation of the wind. Just okay. And such wind have a this ability or the one special feature, that's a blow. It's have a blow. And when it's a blow, that time it create a one kind of the velocity. Just okay, that is a one pressure, and due to that we have gets one velocity there. Just okay, I have tried to here
by using one picture. Yes, one person with his umbrella, he walk along the road, but he puts his umbrella in front of his head and try to putting pushing to that umbrella. Let's walk forward direction opposite to the wind. Opposite to the wind, what happened? That time wind create a pressure, means wind have one kind of a energy, and due to that energy we have gets the, yes, we have convert it into kinetic energy. We have converted into kinetic energy. चलिए, तो such energy we have used in this mechanism, in this wind power station, and we have obtained, we have generated the electric current here. So we have learns here. So comes to our next slide. In this next slide we have get one information here. चलिए, we have take one information. Which information we have learns here? That is a theoretical information. Means such wind energy we have not used now in those days. We have used from our ancestor. Yes, in our age, old age. Yes, okay. In that old age, we have used this wind power energy for lifting the water in agriculture, lifting the water. Yes, as well as the grinding the grains. Yes, okay. Grind mills. That is a flour mills. We have used such wind power or the wind energy there. Yes, as well as the traveling purposes. Yes, example, सीड की जहाज बोलते हैं ना, सीडांचे जहाज. Yes, and that time we have arranged the, yes, sticks or the, yes, one high supports, mechanical supports, and we have used the cloth fittings, and with having the some space. Yes, okay, we have construct the specially cloth arrangements to the, that's boats, sailing boats. Yes, okay, and we have according to that flow, yes, naturally they create the pressure, and it is a possible to traveling purpose. Yes, we have used such a techniques also. Yes, from our ancestors. Yes, we have learned in our some historical accounts, as well as such electrical energy now in those days we have used, yes, for the purpose of the electricity generators there, generating the electricity there. Just okay. So the mechanical energy वो converts into this kinetic energy. अभी ये mechanical energy से हम क्या है यहाँ पे kinetic energy यहाँ पे क्या करेगी, mechanical energy को convert करती है. ठीक है बेटा, wind है, wind trap किया जाता है. ट्रैप करने के बाद wind ये trap किसके द्वारा किया जाता है? जैसे कि wind mill के जो blades होते हैं ना, वो ब्लेड्स क्या करते हैं, विंड को ट्रैप करते हैं. और जैसे विंड ट्रैप किया जाता है तो ब्लेड घूमने लगेगी, और जैसे ब्लेड घूमते हैं तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, जैसे बताने का प्रयास किया था वहां पे स्लाइड में. और मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइंस घूमने लगेंगी. ठीक है, टरबाइंस घूमने लगेंगे तो टरबाइंस यहाँ पे जनरेटर को कनेक्ट किए वाले होते हैं, तो जनरेटर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है ना बेटा. तो ये यहाँ पे मिलता है हमें सीखने के लिए. एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे मिलती है. अभी ये जो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलती है, इसको हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ कॉल्ड एज अ विंड टरबाइन. ये एक्चुअली विंड टरबाइन होते हैं. ठीक है, अभी देखिए विंड टरबाइन कैसे काम करते हैं. तो विंड टरबाइन यहाँ पे देखिए बेटा, अगेन वी आर गोइंग टू द विंड टरबाइंस हियर. चलिए, तो आई हैव ट्राई टू शो हियर हाउ द विंड टरबाइंस आर अरेंज्ड हियर. देखिए, एक्चुअली this is a one have a tower. Yes, it give the mechanical supports to the blades here. That is a generators are arranged on the top. Yes, these are blades, and blades arranged different way. Sometimes blades use mono blade, sometimes die blade, or sometimes it is a multi blade. Just okay, according to the positions of the geographical places. Yes, we have used the blades there. Yes, okay, because the wind flow is not same or not regular to all places. It's goes to the frequently changes there. Yes, okay, and according to that geographical places situations, yes, we have construct the windmills. Yes, okay, they are having different blades here. I have tried to show here three blades windmill here. ठीक है, these are one have a one tower. Tower, what's the role of the tower?
टावर गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ब्लेड्स। जैसे ओके, अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये टावर बताया है, टावर को यहाँ पे पूरे यहाँ पे ब्लेड्स अरेंज किए वाले हैं। यस, समझ में आता है। स्पेशल काइंड ऑफ टर्बाइन हियर, दैट इज अ विंड जनरेटर। विंड जनरेटर, अभी देखिए एक विंड जनरेटर क्या हो रहा है एक्चुअली, ध्यान आ गया है। तो दैट इज अ फ्लो ऑफ द विंड, टू द फ्लो ऑफ विंड। विंड इज अ ट्रैप्ड, अभी देखिए विंड इज अ ट्रैप्ड बाय ब्लेड एंड ब्लेड गोज टू रोटेट। देखिए यस, दिस इज एनिमेशन इफेक्ट। देखिए अभी ट्रैप किए जा रहा है, तो देखिए बेटा विंड यहाँ पे ट्रैप कौन कर रहा है, ब्लेड, एंड ब्लेड गोज टू द रोटेट। चलिए ब्लेड यहाँ पे रोटेट होते हैं। एक्चुअली व्हेन ब्लेड गोज टू द रोटेट, यस मैंने बताया तो विंड, हवा सभी जगह एक जैसे नहीं होती है, क्योंकि हवा हवा का बहाव अलग अलग होता है ना बेटा। अभी हवा का बहाव जब कम होगा तो ब्लेड्स कम रोटेट होंगे, और जैसे ब्लेड कम रोटेट होंगे तो यहाँ पे जो टर्बाइंस होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो मेंटेन न रह पाएगी, क्योंकि वो भी धीमे चलेंगे, और जैसे धीमे गति से चलेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में इतना सारा चेंज हमें नहीं दिखाई देगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। उसे इफेक्टिव बनाने के लिए उसका स्पीड जो होता है, उसका रोटेशन होता है, उसको हमें कायम बनाना पड़ता है। तो कायम बनाने के लिए उसका फ्लो हमें कंटिन्यू होना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी हैव स्पेशल डिजाइन कंस्ट्रक्ट हियर इन द विंड जनरेटर। Yes, which is the special design construction in wind generator? There is a gearbox, and in that gearbox, what is the function of gearbox? Suppose the flowing air is have a, yes, that is a slow air, minimum one। yes okay, अभी स्लो हवा बहती है, धीमी हवा है, तो उस धीमी हवा में ब्लेड के रोटेशन भी कैसे होंगे बेटा, धीमे होंगे। दैट इज अ लो आरपीएम, है ना बेटा। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, उसके रोटेशन कम हो गए। एंड व्हेन द लो आरपीएम इज ड्यू टू द कॉज ऑफ लो विंड्स ब्लो, है ना, विंड का ब्लो कैसा है, बहाव कैसा है, यहाँ पे कम है। इट्स ओके, एंड दैट टाइम एक्चुअली टर्बाइन रोटेशंस इज नॉट रेगुलेट्स हियर। यस, बट विद हेल्प ऑफ द गियर बॉक्स, तो गियर बॉक्स क्या रोल प्ले करता है, हम गियर बॉक्स से क्या करेंगे, टर्बाइंस के रोटेशन को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। समझ में, हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो क्या होता है बेटा, गाड़ी में हम गियर शिफ्ट करते हैं, जैसे कि गियर को शिफ्ट करते हैं तो इंक्रीज द स्पीड, जैसे गियर शिफ्ट करते कभी कभी हम स्पीड को कम भी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एंड सच मेंटेनिंग, जैसे ओके, इट इज अ पॉसिबल यूजिंग द गियर। जैसे ओके, जस्ट एक्चुअली ऑब्टेनिंग एयर, जैसे जैसे कि ब्लो, हवा का जो बहाव जैसा हो, उसी बहाव को लेकर हम टरबाइन्स के रोटेशन को क्या करते हैं, उसके जो ड्राइव रोटेशंस होते हैं उसको हम मेंटेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दी, यस, विद हेल्प ऑफ दी क्या बेटा, दैट इज अ वन gearbox। yes, it's a importance here। again such gearbox we have used here। अभी देखिए this gearbox are connect to, अभी ये जो gearbox होते हैं ना, इस, yes, what is the function of gearbox, low rpm convert into high rpm, कभी कभी high rpm को low rpm में convert करता है, ये gearbox का function होता है। अभी ये gearbox is are connected to the generator। जनरेटर का रोल तुम्हें तो पता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी जब बनती है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन तार बोलते हैं, है ना, एमएससीबी के जैसे होते हैं ना, वो तारों से हम क्या करते हैं, ग्रिड लाइन से हम उसको सप्लाई करते हैं टू अवर डिफरेंट पर्पजेस। बट देखिए बेटा यहाँ पे विंड अभी ज्यादा हो गई, फ्लो बढ़ गया, जैसे फ्लो बढ़ेगा तो ब्लेड ज्यादा रोटेट होंगे, और जैसे ब्लेड रोटेट होंगे यहाँ तो इसके ऊपर इफेक्ट होगा, है ना, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज ग्रिड में बनेगा, और जैसे कि हाई वोल्टेज होगा या लो वोल्टेज होगा, फ्लक्चुएट होगी लाइट, जैसे लाइट फ्लक्चुएट होगी तो इट इज वेरी डेंजरस टू अवर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यहाँ पे सुरक्षित रह पाएंगे नहीं, है ना बेटा, तो यहाँ पे खतरे भी बढ़ सकते हैं, तो इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बहाव जब वोल्टेज होता है उसको कायम रखने के लिए यहाँ पे कौन मदद करता है, एक कंट्रोलर, ठीक है। अभी कंट्रोलर क्या करता है बेटा, यस, इट्स मेंटेन द रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज रेगुलेट द वोल्टेज, रेगुलेट द वोल्टेज, यस ओके, इस वोल्टेज को कायम करता है। इस एक गियर बॉक्स को मेंटेन करते हुए ये दोनों को भी, है ना बेटा, जैसे रोटेशंस, जनरेटर के रोटेशंस और ग्रिड लाइंस के जो वोल्टेज का जो बहाव होता है उसको भी
कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर यूज किया जाता है। सो दिस इज वन है मैकेनिज्म। देखिए लाइट मैकेनिज्म यहाँ पे हमें दिखाई देता है। समझ में आ रहा है बेटा? सिंपल। देखिए बहाव, ये लो आरपीएम कब होगा, हवा का बहाव कम हो तो लो आरपीएम को हमें ज़्यादा आरपीएम में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि टर्बाइन्स घुमाना है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं बेटा, गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं। दिस इज वन हाउ स्पेशल फ्यूचर ऑफ द विंड जनरेटर्स है ना, ये विंड पावर जनरेटर्स का स्पेशल फ्यूचर है, स्पेशल डिजाइन है। एंड सच मैकेनिज्म, सच वर्किंग यस वी हैव लर्न्स हियर, इस वन हैव सिंपली हियर। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे हम ये इसका मैकेनिज्म यहाँ पे हमें पता चलता है। इसको थोड़ा सा ध्यान देके लर्न करना है, कर सकते हैं ना? वेरी इंटरेस्टिंग है। यस ओके। तो देखिए हम अभी अगले स्लाइड में आते हैं। तो अगले स्लाइड में हमें देखिए बेटा, यहाँ पे हमें क्या लर्न करना है, तो वी हैव लर्न हियर द ब्लॉक डायग्रामेटिक अरेंजमेंट हियर। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम अरेंज किया है, इसको हमें प्रैक्टिस करना है बेटा। कागज पेन लेना है, बार बार इसे हमें ड्रॉ करना है। जब तक हम यहाँ पे इसे सही ढंग से लर्न नहीं कर पाते तब तक हमें ड्रॉ करना है। बस इसे लर्न करना है, इसके लेबलिंग करनी है ना, उसको समझ लेना है, इसका मैकेनिज्म समझ लेना है हमें। ठीक है? तो ये हमें बार बार या रिपीटली करना है इसको। ठीक है बेटा? चलिए तो यहाँ पे देखिए दिस आर वन ऑफ दिस इज अ टर्बाइन हियर। यस ओके। अभी यहाँ पे टर्बाइन है, यहाँ पे ये ब्लेड्स लगा है यहाँ पे, एक्चुअली ये भी विंड है, दैट इज वन हैव फ्लूट है ना। विंड ए एनर्जी है ना, काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आता है? तो हम इसको अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फैन को रोटेट करेंगे है ना। तो फैन जब रोटेट होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होगी यहाँ पे है ना बेटा, क्योंकि ट्रैप करते हैं। फैन का फंक्शन क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विंड ब्लेड है ना, विंड मिल ब्लेड। सो फंक्शन क्या होगा, दैट इज अ ट्रैपिंग द एयर यस एंड रोटेट दी and create the kinetic energy and form in convert into the kinetic energy। चलिए ट्रैप करता है एयर को एंड काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, रोटेट होता है। तब यहाँ पे गियर बॉक्स के द्वारा स्पीड मेंटेन करते हुए इस टर्बाइन्स क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। टर्बाइन जब घूमता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिससे कंडक्टर के ऊपर से वो फ्लक्स चेंज होगा, जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगी, बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी हम ग्रिड के द्वारा अलग अलग पर्पज के लिए हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल किसका बेटा, यहाँ पे कन्वर्टर कंट्रोलर का रोल है, क्योंकि ये वोल्टेज को कायम रखता है ना बेटा, और यहाँ पे ब्लेड के रोटेशन भी कायम करता है। किसके मदद के द्वारा, दैट इज अ रोटर साइड कन्वर्टर एंड ग्रिड साइड कन्वर्टर। ग्रिड साइड कन्वर्टर म्हणजे, ग्रिड साइड कन्वर्टर का मतलब जहाँ पे वोल्टेज पास होता है, वोल्टेज को फ्लक्चुएशन से बचाता है, ये कायम रखता है। और रोटेटर कन्वर्टर का मतलब यहाँ पे ब्लेड्स, दैट इज अ मैकेनिकल रोटेटर साइड कन्वर्टर, इट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर। जैसे पहले बताया था ना एनिमेशन में, ये मैकेनिकल पावर को रिलेटेड है, ए वाला ए एरो, और इधर का एरो है दैट इज ए इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी हैव सिंपली yes we have learns here how it's a mechanism, that's a kinetic energy in wind. Yes, kinetic energy in wind, and such energy we have used for rotating the turbines, and when the turbines go to the rotate, yes we have, yes, that's applied to the generator, and generators is one device that mechanical energy convert into electric energy, mechanical energy convert into electric energy. Just okay, we have learn here. So in this kind of this wind power station, we have create the minimum energy electric energy, yes, to the high or maximize electric energy generates here. Actually how much electricity we have obtained by using such a kind of the power station, that is a wind power station, that is a maximum energy we have obtained here near about 7 megawatt, near about a 7 megawatt. So 1 megawatt is nothing but what, 1 megawatt is nothing but 1000 kilowatt। देखिए ये रिलेशन ध्यान में रखना है, 1 megawatt is equal to 1000 kilowatt and 7 megawatt is equal to 7000 kilowatt।
जैसे कि हम इतनी बड़ी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, कैपेसिटी समझ में आ रहा है बेटा। और कम कैपेसिटी कितनी होगी, कम से कम मिनिमम हम यहाँ पे 1 किलोवाट क्या कर सकते हैं बेटा, 1 किलोवाट इज नथिंग बट दैट इज 1 मेगावाट। समझ में आता है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, हमें अभी थोड़ा सा क्या करना है बेटा, एक्टिवेट होते हुए कुछ कुछ रूल्स और कुछ यहाँ पे कुछ कृति करना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है बेटा। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें आईसीटी की हेल्प लेनी है ना। गूगल्स में जाके उस गूगल सर्च इंजन से हमें पता करना है ना, अपने भारत में कहाँ कहाँ पे ये मेजर पावर स्टेशन, विंड पावर स्टेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश किए वाले हैं, इसको थोड़ा सा लर्न करना है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसका डाटा कलेक्ट करना है। और एक नोटबुक के देखिए, कच्ची जो पूरी हमें डेट बोलते हैं ना, यूज हुई वाली नोटबुक, उसको इस्तेमाल कीजिए। वो नोटबुक लेना है, उसके जो पेजेस होते हैं ना, उसके पेजेस के ऊपर लिखे वाले पेजेस यूज किए वाले, उसके ऊपर हमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। जो रफ पेज होता है ना, उसका यूज किया वाला यूटिलाइज पेज के ऊपर उसको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पेज उसको पेस्ट करना है। अभी पेस्ट करके उसका ऐसे एल्बम जैसा बनाना है, इंफॉर्मेशन पूरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट एंड मेक वन एल्बम। मेक वन एल्बम इज वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, जस्ट ओके, वी हैव डू इट। चलिए, हर एक ने करना है। यस, इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर यू, इट्स कैरी द 8 marks, जस्ट ओके। सो इट्स वेरी important actually in this power station. We have, yes, arranged the different windmills here. So according to their heights and their blades also constructed according to their geographical places. Actually low wind mills होते हैं, लो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, दैट्स विंड मिल्स हैव ए दैट्स लेंथ ऑफ द ब्लेड इज मिनिमम। Yes, okay. And high capacity power generating windmills have a their blade length is a more there. Actually देखिए यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। यहाँ पे देखिए बेटा, इट्स हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, इट्स हाइट्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कॉमनली है ना बेटा, तो कॉमनली हाइट पे जैसे कि यहाँ पे हम ये जो हाइट दी है ये 35 मीटर्स इज फ्रॉम द शिशोर रीजन। शिशोर रीजन समुद्र सपाटीपासून म्हणतो आम्ही त्याला। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेड की लेंथ होती है 1.5 मीटर। कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, यहाँ पे 2 किलोवाट। दूसरा यहाँ पे विंड फार्म्स, थोड़ी सी यहाँ पे जैसे खुले स्पेस होते हैं, है ना, ओपन प्लेस होते हैं, है ना बेटा। तो वहाँ पे हम जैसे विंड मिल अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे ब्लेड की जो लेंथ होगी तो वहाँ पे 50 मीटर की होगी। तो वहाँ की जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, नियर अबाउट 2000 किलोवाट। ठीक है, 2000 किलोवाट। एक्चुअली 2000 किलोवाट इज नथिंग बट दैट इज अ 2 मेगावाट। ध्यान दीजिए, ऐसे कन्वर्सेशन एग्जाम में पूछे जाएगी, जरूर पूछे जाएगी। चलिए बेटा, तीसरा है अलोंग द सीशोर। ठीक है, वहां पे हम क्या देखेंगे, जैसे कि वो जो ब्लेड्स होते हैं नियर अबाउट देयर लेंथ इज अ 100 मीटर। जैसो कैन कैपेसिटी इज अ 6000 to 7000 किलोवाट, दैट इज अ 7 मेगावाट। चलिए, नियर अबाउट 7 मेगावाट, इस रेंजेस इन बिटवीन 600 to 7000। ठीक है बेटा, किलोवाट्स में दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मेगावाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज अ 7 मेगावाट। चलिए, तो यहाँ पे हमें कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन। ये देखिए बेटा, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया है, बच्चा यहाँ पे गेट इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे तुम्हें बोल रहा है, चलिए कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जैसे कि डाटा को कलेक्ट कीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और एक प्रोजेक्ट बनाइए। जस्ट ओके, एंड गेट्स द हाउ मेनी मार्क्स, 8 मार्क्स। जस्ट ओके, बिकॉज yes, it's a every students is compulsory to you, yes, according to the exam you is carry the how much marks, 8 marks। चलिए, so again we will go to the next slide, yes, which is is only for you। ठीक है, चलिए अभी हमें केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना है बेटा, एक स्लाइड मैंने दी है लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट तुम्हें बनाने के लिए कहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जैसे कि देखिए बेटा, एक हमें ऐसा मैप यहाँ पे ऑब्टेन करना है। उसी मैप में कहाँ कहाँ पे यहाँ पे जो पावर विंड पावर स्टेशन है वही यहाँ पे देखा दिखाना है, उसके
कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक जनरेटिंग कैपेसिटी, ये भी यहाँ पे बतानी है। ये हमें यहाँ पे मैप कलेक्ट करना है। इसको करने के लिए हमें गूगल सर्च इंजन में इसको हमें आइडेंटिफाई या सर्च करना है। ठीक है बेटा, समझ में आता है? ये कर सकते हैं हम, इजी है अपने लिए, है ना? और ये हमें प्रोजेक्ट बनाना है। चलिए, अभी यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए है, लोकेशंस दिया है, स्टेट्स है, उसके रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, स्टेट्स है, ठीक है, और कैपेसिटी है। चलिए, तो ऐसे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें कलेक्ट करना है। ठीक है, अभी तक देखा है हमने कि हर एक पावर स्टेशन जब हमने लर्न किया तो वहां पे उसके मेजर पावर प्लांट लोकेशंस दिए थे, है ना? उसकी कैपेसिटी दी थी, उसके स्टेट्स दिए थे, रिलेटेड स्टेट दिए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे तुम्हें कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इट्स फॉर यू, सो वी हैव डू द प्रोजेक्ट, वी हैव मस्ट फॉलो इट। ठीक है, सो वी हैव स्टॉप हियर। थैंक यू।